नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और खुश हो। विथ कीपिंग दिस थीम, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट पावर ऑफ कम्युनिकेशन, जिसे हम पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। In today's video we will discuss in detail that how to become a effective communicator, how to become a good speaker। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। Now in this video we will discuss two types of communication। One, as a speaker, public speaking के टाइम पे जो communication होता है that we will see, and also one to one टाइप का जो communication होता है उसमें भी हम देखेंगे। In both the cases we will see how to become effective communicator। एक अच्छा speaker कैसे बनना है we will see in details। So let's kickstart with these beautiful lines which reads, light travels faster than sound. That's why some people appear bright until you hear them speak. And it's very true। कुछ लोग दूर से बहुत अच्छे दिखते हैं जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलते हैं। इनफैक्ट इट सेड दैट व्हेन यू स्पीक, थिंक ट्वाइस बिफोर स्पीकिंग एनीथिंग, थिंक ट्वाइस, because the moment you open your mouth you are telling the world who you are। So this is the importance of communication, and it is all of us know it very well। Now there is something, this is a term called glossophobia। Glossophobia is nothing but the fear of public speaking, and you will be surprised to know log fear of public speaking comes before the fear of death। मतलब फियर ऑफ डेथ जो है वो बाद में आता है। मतलब लोग जो है मरना पसंद करते हैं rather than going on the stage and speaking। So you can understand how difficult it is, but it's not impossible। थोड़ा डिफिकल्ट होता है बट इट नॉट इम्पॉसिबल, इट कैन बी इम्प्रूव। सो वी विल सी इन डिटेल्स कि इसको कैसे इम्प्रूव करना है एंड हाउ टू बिकम अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर और अ गुड पब्लिक स्पीकर। Now this very concept of communication and all this thing is very close to my heart। uh, in fact most of my friends say to me that I have a gift of gab। Gift of gab is nothing but मतलब having a eloquent communication। मतलब I have that quality of public speaking and I am an effective communicator, ऐसा बहुत लोग बोलते हैं। तो that's why, and I do believe that because since childhood you can say I have been working on this। जैसे आप यहाँ पे, जैसे मैं आई कैन शेयर वन इंसिडेंस ऑफ माई लाइफ। जब मैं बचपन, व्हेन आई वाज इन द चाइल्डहुड, माय फादर यूज्ड टू सेंड मी ऑन द स्टेज टू स्पीक। बचपन से ही मुझे मेरे पापा फोर्स करते थे कि स्टेज पे जाने के लिए और बातें करने के लिए, टू टॉक ऑन द। सो आई गॉट दैट पब्लिक एक्सपोजर सिंस माय चाइल्डहुड। But the thing is you need to develop it from time to time। So yes, this topic is very close to my heart and I have been working on this since my childhood। Actually जो मैंने काम करना स्टार्ट किया था इसके ऊपर, इट वाज इन बैक इन 2000 आई थिंक 10 और 11 से, एंड सिंस आई हैव बीन डेवलपिंग इट। And आज I can say that yes, this is, I am a effective communicator to some extent I think, and I am still developing it। So let's deep dive into the topic that how to become an effective communicator। कैसे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो आपके बोलने की क्षमता से या बोलने की ताकत से। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब पावर ऑफ कम्युनिकेशन का अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसका डेफिनेशन क्या है? इट्स एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ। नाउ इफ इट्स एन एबिलिटी, व्हाट डज इट मीन? इट्स अ स्किल। एबिलिटी मतलब क्या होता है? एक स्किल है। एंड एबिलिटी या स्किल का क्या इंपॉर्टेंस होता है? इसका मतलब है कि इट कैन बी डेवलप। नाउ दिस इज अ गुड थिंग दैट दिस ability can be developed। So it's an ability to express oneself adequately। Now adequately, this is very important। What does it mean? You need to be very concise and precise। when you are expressing yourself, आपको बहुत concise और precise manner में आपको express करते आना चाहिए। with ease। ease is nothing but बिना, इट्स अ लैंग्वेज स्किल। आपका लैंग्वेज का फ्लो कैसा है वो डिटरमाइन करता है। विथ ईज एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स आप आप जो बोल रहे हो वो लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं। आप किस तरीके की लैंग्वेज यूज कर रहे हो। पता चला कि आपकी जो ऑडियंस है, आप जो बोल रहे हो उसको, उसका लेवल अलग है, और आप जो
लेवल का लैंग्वेज यूज कर रहे हो, उनके कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। सो एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग के लिए आप यू कैन सी और यहाँ का डेफिनेशन, इट्स एन एबिलिटी टू एक्सप्रेस वन सेल्फ एडिक्वेटली विथ ईज एंड क्लैरिटी। क्लैरिटी के मतलब छोट एक फैमिलियर, बहुत आसान शब्दों में आपको खुद को एक्सप्लेन करते आना चाहिए। तो दिस इज एन एबिलिटी, अगर आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हो आसान कम से कम शब्दों में और अच्छी तरीके से, अगर आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि आपको क्या बोलना है, तो यस यू हैव दिस एबिलिटी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो वी कैन, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन, क्या इसका डेफिनेशन, इस एबिलिटी है मतलब इट कैन बी डेवलप, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट दैट कि कैसे डेवलप करे क्या करे, तो दिस कैन बी developed. Second, adequately we need to be concise and precise while with ease and clarity, that is language clarity. Which example do you use, आपका audience कैसा है उसके according you need to go with that. Now let's see what are the okay now in any type of communication, आप किसी भी टाइप का communication ले लो, there are three in three terms involved in it, तीन चीजें उसमें होती है। फर्स्ट इज द सेंडर, जो मैसेज को सेंड करता है उसे हम सेंडर बोलते हैं। सेकेंड इज अ रिसीवर, वन हु इज ऑन द रिसीविंग एंड, it is receiver, and that is, this is nothing but the message they are trying, that sender is trying to send and which receiver is trying to receive. So किसी भी टाइप का कम्युनिकेशन है, whether it is a public speaking या पब्लिक स्पीकिंग हो, या फिर वन टू वन जैसे काउंसलिंग जैसे मैं करता हूँ, वन टू वन कन्वर्सेशन हो, तो किसी भी तरीके का हो, ये हर टाइप के कम्युनिकेशन में आपको यूज होगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डाइव इनटू द मेन टॉपिक, दैट इज कैसे इसको डेवलप किया जाए। नाउ देर आर 6 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसा बोला जाता है कि देर आर 6 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम देखते हैं कि उसको कैसे डेवलप करना है। नाउ फर्स्ट इज कनेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कनेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर, ये जो इंसान यहाँ पे बोल रहा है, वन हु इज डूइंग अ पब्लिक स्पीकिंग ओवर हियर, इफ ही इज नॉट एबल टू कनेक्ट विद दिस ऑडियंस, ये जो भी बोलना चाहेगा बाद में वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ेगा। इफ ही इज नॉट एबल टू मेक अ कनेक्शन विद द ऑडियंस, he will not able to influence the audience को influence ही नहीं कर पाएगा। तो first and the foremost important thing when it comes to the public speaking or every type of communication, याद रखना है आपको, you need to establish a connection. connection जब तक नहीं बनेगा तब तक आप दूसरों को influence कर नहीं पाओगे। so first thing is connection. Now and research shows, now these are the very beautiful lines of the psychologist Carl Jung, whenever know all the theories, master all the technique, but as you touch a human soul, be just another human soul. Now ये चीज याद रखना है कि कनेक्शन जब आप एस्टेब्लिश कर रहे हो, तो whenever ये चीज याद रखना है, whenever you are interacting with any human being, you are, याद रखना, you are interacting with the creature of emotions, and connection at the emotional level is the strongest connection. I am repeating it, connection at the emotional level is the strongest connection. सो आपको कोशिश क्या करना है कि यू कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस। वंस यू गेट कनेक्ट इमोशनली विद द ऑडियंस, देन यू कैन ट्राई कन्वे योर मैसेज, वॉट योर मैसेज यू वांट टू कन्वे इन द ऑडियंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कनेक्शन, एंड वो भी कनेक्शन कौन सा होना चाहिए, एट द इमोशनल लेवल, बिकॉज वेन यू आर डीलिंग विद द ह्यूमन बींग्स, याद रखना हमेशा, यू आर डीलिंग विद द क्रिएचर ऑफ इमोशंस। सो इमोशंस का जो कनेक्शन होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल का कनेक्शन होता है। नाउ वो कैसे हम कर सकते हैं, लेट्स सी हाउ टू डू दैट। नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक ऑफ आई एम ओके यू आर ओके, बहुत अच्छा बुक है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस का, यू कैन गो थ्रू दैट, इट इज हाईली रिकमेंडेड बुक। अब अगर आपको एक इमोशनल लेवल पे अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो ये आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इफ़ यू सी द फंक्शनिंग ऑफ द माइंड, तो माइंड के तीन काम ये होते हैं। फर्स्ट इज रिकॉर्ड, रिप्ले एंड रिलीव, दीज आर द थ्री फंक्शंस ऑफ ह्यूमन माइंड। तो माइंड, आप बचपन से जो भी सुनते आ रहे हो सब कुछ रिकॉर्ड रहता है आपके माइंड में। सो दिस इज द रिकॉर्ड, रिप्ले एंड रिलीव। नाउ आपका जो रिकॉर्डिंग होता है, ये थ्री टाइप का रिकॉर्डिंग होता है। इसको हम बोल सकते हैं कि वन इज चाइल्ड, सेकेंड इज एडल्ट,
and third is parent. Now I will make the explanation as easy as ABCD, don't worry about that. Now see, आप किसी का भी बिहेवियर देखो, खुद का बिहेवियर अगर आप देखोगे तो आपको तीन टाइप के बिहेवियर आप में दिखेंगे। तो कभी कभी यू विल बिहेव लाइक अ किड। इनफैक्ट हम सब में एक बच्चा, एक मासूमियत, बच्चा छुपा होता है। देयर इज अ चाइल्ड हिडन एवरी एवरी वन ऑफ अस। हर एक हम में एक बच्चा छुपा होता है। देयर इज चाइल्ड हिडन इन साइड ऑफ अस। नाउ सम ऑफ द टाइम पीपल बिहेव लाइक अ चाइल्ड। कभी कभी लोग एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब या अचीव वी शुड डू दैट, वी शुड वर्क ऑन दैट, ऐसी चीज़ें जो होती है। एंड सम टाइम वी बिहेव लाइक ए पैरेंट, मतलब कभी कभी आपके दोस्त ने कुछ गलती कर दिया तो आप उसको बताते हो कि यू शुड नॉट डू दैट, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो, ऑल दिस। सो ये जो रिकॉर्डिंग होती है वो तीन टाइप की रिकॉर्डिंग होती है। फर्स्ट इज चाइल्ड, सेकेंड इज एडल्ट, और तीसरा क्या होता है, पेरेंट्स। नाउ इफ यू सी, चाइल्ड अंडरस्टैंड ओनली वन लैंग्वेज। बच्चा जो है वो सिर्फ एक लैंग्वेज समझता है, और वो होता है लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। आपको याद रखना है कि चाइल्ड जो है, आपको जो भी आप खुद को इंट्रोस्पेक्ट अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको बहुत सारी चीज़ें बचपन की याद नहीं रहती है। बिकॉज एक बच्चे में लैंग्वेज कैपेसिटी नहीं होती है, ही अंडरस्टैंड ओनली लैंग्वेज ऑफ इमोशंस। मतलब एक बच्चा जो है वो इमोशंस की लैंग्वेज समझता है, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं समझता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर, इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ आप सबको। पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि यू नीड टू एस्टेब्लिश ए कनेक्शन। आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, और कनेक्शन एट द इमोशनल लेवल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन। और इमोशनल लेवल पे अगर आपको स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाना है तो यू नीड टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो आपको थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर करना पड़ेगा। क्योंकि आप में जो बच्चा छुपा हुआ है, देर इज आई टोल्ड यू देर इज अ कीड हिडन एवरी वन ऑफ अस। हम सब में एक बच्चा छुपा हुआ है। इफ आई बिहेव लाइक अ कीड, आई विल एबल टू इजीली कनेक्ट विद द पीपल, with the kid that is hidden in the audience, or with the opposite person with whom I am having an interaction. तो इसका मतलब ये नहीं है कि एकदम बच्चे की तरह वो कूदना इधर उधर चालू कर दो। दैट्स नॉट द मैसेज आई एम ट्राइंग टू कन्वे। मतलब आपको क्या करना है, whenever you go on a stage, जब कभी आप जाते हो स्टेज पे, और whenever you start a conversation, just start a conversation like a normal kid। मतलब always start, crack a joke easily, you can crack a joke, you can normally आप क्रैक कोई जोक्स क्रैक कर सकते हो। आप फ्री फ्रैंक होके बात कर सकते हो। जैसे फर्स्ट टाइम इफ यू आर गेटिंग एक्सपोज टू द पब्लिक, एट दैट टाइम यू कैन से फ्रैंकली मुझे थोड़ा डर लग रहा है, एंड यू कैन स्माइल, यू कैन क्रैक अ जोक ओवर देयर। सो ये जो कनेक्शन होगा, जैसे ही आप ऐसा करोगे, व्हेन यू विल बिहेव लाइक अ चाइल्ड, यू विल डायरेक्ट गेट कनेक्टेड विद द ऑडियंस। सो याद रखना है कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने के लिए, या तो अपोजिट पर्सन के साथ कनेक्ट करने के लिए, जैसे मैं वन टू वन काउंसलिंग में करता हूँ, व्हेन आई काउंसिल different student, what do I do, I make them comfortable। I first of all I need to establish a contact with them। जब तक मैं उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता हूँ, तब तक वो मुझे उनके बारे में, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे नहीं बताते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल कि यू नीड टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन, एंड दैट कनेक्शन शुड बी एट द इमोशनल लेवल। और इमोशनल लेवल पे अगर आपको कनेक्शन बनाना है, तो आपको एक नॉर्मल, एक छोटा सा आपको आपके बिहेवियर में एक बचपना लाना पड़ेगा। एंड जैसे ही आपने वो ला लिया, you will able to connect with that person, and once we able to connect, now the actual picture start। so in fact I was going, this is a web series, एक netflix के ऊपर वेब सीरीज आया है, 10 humans 100 humans life questions answered। इसके उसके ऊपर इन्होंने एक रिसर्च किया था, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने क्या किया कि एक स्पीकर को भेज दिया किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए। एंड पहले उसको बोलने के बहुत सीरियसली उसको बोलने के लिए बोला गया कि दैट स्पीकर वाज टोल्ड टू बी वेरी सीरियस टोन में उसे चीज़ें बोलने के लिए बोली गई। और दूसरा टाइम पे सेम स्पीकर को बोला भेजा गया, और दूसरे टाइम पे उसे बोला गया कि बिहेव फ्रेंडली मैनर में, एंड ट्राई टू बी फनी पर्सन, फनी वे में चीज़ें, सेम मैसेज, सेम स्पीच, but in a different way। He's putting his speech, he's putting his message in a friendly and funny manner, rather than जो पहले केस में सीरियस मैनर में था, सेकंड केस में फ्रेंडली और फनी मैनर में था। सो सेम ऑडियंस ने सेम स्पीकर को सेम मैसेज के लिए सेकेंड टाइम पे ज़्यादा पसंद किया एज कम्पेयर टू द फर्स्ट टाइम। सो दिस इज
highly embedded into the science and human psychology. So that's why आपको हमेशा याद रखना है, सिंपली याद रखो, फर्स्ट first you need to connect with the audience, connect with the people with whom you are talking, connect with the person with whom you are interacting. Connection आपको establish करना है emotional level पे, और emotional level पे you can easily establish a connection just by behaving like a थोड़ा सा childish behavior लाके आप you can establish a connection. I hope you are understanding what I am trying to convey over here. Now once you established a connection, now you can start conveying. आप अभी आपका जो मैसेज है आप कन्वे करना स्टार्ट कर सकते हो. नाउ व्हेन यू आर कन्वेइंग, याद रखना इसमें आपका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आपका लैंग्वेज का फ्लो, विच लैंग्वेज डू यू यूज. सी, अगर आपका देर इज नथिंग ऐसा, हमारे वी हैव अ इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वी इंडियंस हैव अ इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स. जैसे कोई इंग्लिश में अगर स्पीच दे रहा है तो हमें नेचुरली फील होता है कि ही इज अ सुपीरियर टू अस. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ विच लैंग्वेज यू यूज, मेक श्योर दैट अगर आपका लैंग्वेज की क्लैरिटी है, अगर आपका इफ यू हैव अ ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, तो यू कैन इजीली कन्वे. एंड मेक श्योर दैट इट completely डिपेंड्स कि लैंग्वेज कैसे यूज करना है आपको. इट डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस और विद द पर्सन विथ whom यू आर इंटरेक्टिंग. अगर नॉर्मल ऑडियंस है तो वैसा आपका लैंग्वेज होना चाहिए, ज़्यादा हेवी वर्ड्स या हेवी इडियम्स यूज करने की ज़रूरत नहीं है. इट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द ऑडियंस. अगर ऑडियंस उतना पावरफुल है तो वो समझ लेंगे. अगर वो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है, दैट विल नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल. तो व्हेन यू आर कन्वेइंग एट दैट टाइम, याद रखना आपका लैंग्वेज का क्लैरिटी मैटर्स अ लॉट. इफ़ यू वांट टू बी अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर में कन्वे की कैपेबिलिटी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा डिटरमाइन की जाती है. अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, मेक श्योर दैट आपका इंग्लिश का फ्लू ऐसा हो. आप हिंदी में बोलना चाहते हो, मेक श्योर दैट आपकी किसी भी लैंग्वेज में आप बोल रहे हो तो मेक श्योर दैट आपका जो फ्लो हो वो अच्छा हो. यूज अ ब्यूटीफुल वर्ड्स, यूज ब्यूटीफुल लैंग्वेज, जो आपके ऑडियंस को समझ में आए. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर. नाउ व्हेन यू आर कन्वेइंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, दिस इज अ वेरी गुड अफ्रीकन प्रोवर्ब. No matter how good you are, if you stay for too long, you spoil it. A good dancer must know when to leave the stage. आप कितना भी कन्वे कर रहे हो, इनफैक्ट ये विंस्टन चर्चिल के भी these are the beautiful lines. A good speech should be like a woman's skirt, long enough to cover the subject and short enough to create interest. मतलब कन्वे, when you are conveying, याद रखना वहाँ पे आपको बहुत कंसाइज एंड प्रिसाइज मैनर में आपको बताना पड़ेगा. जो डेफिनेशन मैंने एडिक्वेटली बोला था, आपको कंसाइज प्रिसाइज मैनर में कम से कम शब्दों में अच्छी लैंग्वेज यूज करके आपको मैसेज समझाना है. तब अगर आप वो कर पाए तो यस, यू आर अ गुड कम्युनिकेटर. तो याद रखना कि अगर आप ज़्यादा समय, इफ़ यू आर नॉट कंसाइज, अगर आप कंसाइज नहीं हो, आप सीमित नहीं हो, पता चला आपको कोई टॉपिक दिया, आप बोलते ही जा रहे हो, बोलते ही जा रहे हो, योर ऑडियंस, यू विल बोर द ऑडियंस, दे विल गेट बोर टू देयर डेथ. वो ऐसा बोलेंगे कि यार इसको कब कब चला जाए और हम कब फ्री हो जाए. तो दैट शुड नॉट हैपन. तो उसके लिए आपको याद रखना है कि आपका स्पीच और जो भी आप मैसेज करना चाहते हो, वो कम से कम शब्दों में, आसान लैंग्वेज और क्लैरिटी के साथ आप प्रिपेयर करें. तो जाके यू कैन बिकम अ इफेक्टिव कम्युनिकेटर. तब जाके आप ऑडियंस को आपके तरफ अट्रैक्ट कर पाओगे एंड यू कैन इन्फ्लुएंस द ऑडियंस. ओके, now this is the most important part. It is nothing but convince. First we saw connect, next we saw convey, and this is the third C, that is convince. Convince के टाइम पे आपको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ दैट नो cases of, if I am saying that mental health, मेंटल हेल्थ का इम्पोर्टेंस डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. एंड इफ आई एम सेइंग दैट कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हम लोग उतना अवेयर नहीं है. अब ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ, व्हाट अ मैसेज आई एम ट्राइंग टू, अगर मुझे देना है कि मेंटल हेल्थ इज, वी आर नॉट वेल अवेयर ऑफ द मेंटल हेल्थ, और मेंटल हेल्थ के इश्यूज जो है, मेंटल हेल्थ केसेस जो है वो डे बाय डे बढ़ रही है. अब ये मुझे, अगर मुझे मैसेज बताना है मेंटल हेल्थ के ऊपर, सो एंड नाउ आई एम ट्राइंग टू कन्विंस, मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा आपको कि मेंटल हेल्थ के केसेस सही में बढ़ रहे हैं. नाउ ये क्यों बढ़ रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ इसलिए बढ़ रहे हैं क्या, नहीं.
आप whenever you are trying to convey the convince, जब कभी आप कन्विंस करते हो, कन्विंस करते टाइम पे याद रखना है आपको दो चीजें। एक एक होता है इमोशंस और से दूसरा होता है लॉजिक। अब कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ कि इफ़ आई एम सेइंग दैट कि मेंटल हेल्थ के केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं और हम ध्यान नहीं दे रहे इसके ऊपर, ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, इसलिए क्या नहीं, यूर यू नीड टू जस्टिफाई यूर क्लेम। आप जो भी बोलना चाहते हो, आपको यू नीड टू सब्सटेंशिएट इट, आपको उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये सही में है, एंड दैट जस्टिफिकेशन शुड बी बेस्ड ऑन लॉजिक, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इमोशन। वो इमोशंस के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ। आप अगर बोलना चाहते हो कि मेरा भारत महान, आप बोलते हो कि मेरा देश महान है, तो यस महान है। क्यों महान है मैं बोल रहा हूँ इसलिए महान है क्या, या फिर आपको लगता है इसलिए महान है क्या? नहीं, आपको वो कन्वे करना पड़ेगा। आप कन्विंस करते टाइम पे आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि भाई यूजिंग दैट लॉजिक आप क्या यूज कर सकते हो। लॉजिकली यू कैन यूज इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, आप इंटरनेशनल रिपोर्ट्स यूज करते हो, आप स्टैटिस्टिक्स यूज कर सकते हो, आप गवर्नमेंट रिपोर्ट्स यूज कर सकते हो। तो ये जब आप यूज करोगे, यू आर गिविंग अ रैशनैलिटी, यू आर गिविंग अ लॉजिक, यू आर जस्टिफाइंग वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे। सो बेसिकली हमेशा याद रखना है कि आप जो भी बोलो आपके पास उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया न मेरा देश महान है, क्यों तो मेरी इमोशंस बहुत जुड़ी है इसलिए कोई नहीं सुनेगा। यू नीड टू गिव द लॉजिक बिहाइंड दैट कि व्हाई यू फील दैट योर कंट्री is your country, you are proud of your country, and your country is a great country. Why do you believe that? You need to give the logic in terms of statistics, government reports, international reports। तब जाके वो लोगों को आप कन्विंस कर पाओगे, तब जाके आप लोग मतलब लोगों को लगेगा कि इट इज वर्थ लिसनिंग। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। तो जब कभी आप कन्विंस कर रहे हो, कन्विंस में याद रखना दो पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं कि इमोशंस एंड लॉजिक। जो भी आप बोलो उसे आप लॉजिकली जस्टिफाई करो, लॉजिकल जस्टिफिकेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इनफैक्ट वन टू वन कन्वर्सेशन में इसका इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यूअर जो है इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ कि रीडिंग इज़ माय हॉबी, नाउ इफ आई एम ट्राइंग टू कन्वे रीडिंग इज़ माय हॉबी, तो ऑटोमेटिकली इंटरव्यूअर मेरा सेकंड क्या क्वेश्चन पूछेगा, ओके व्हाट डू यू लाइक टू रीड, व्हाट डू यू लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड सेल्फ हेल्प बुक्स, इफ आई लाइक टू रीड सेल्फ हेल्प बुक। तो इमीडिएटली इंटरव्यूअर क्या क्वेश्चन पूछेगा, हैव यू रेड एनी बुक रिसेंटली, कौन सा बुक पढ़ा, एंड अगर आपने बुक पढ़ा तो वहां से क्या सीखा। तो दिस लॉजिकल रीजनिंग हर एक केस में, आप चाहे इंटरव्यू में बोलो, चाहे आप पब्लिक स्पीकिंग में बोलो, चाहे आप काउंसलिंग में बोलो, वन टू वन बोलो, आपको समझना पड़ेगा कि आपको जब आप बोलते हो तो उसका लॉजिक आपको पहले से पता होना चाहिए। अगर आपके पास लॉजिक नहीं है, बेटर यू शट योर माउथ। दिस इज द बेस्ट लेसन आई हैव लर्न इन माई लाइफ। देर इज नो नीड टू हैव ओपिनियन अबाउट ईच एंड एवरी टॉपिक। जरूरी नहीं कि हर एक टॉपिक के बारे में आपके पास ओपिनियन होना चाहिए। जिसके बारे में आपको लॉजिक पता है, जिसके बारे में आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज है, उसी टॉपिक के लिए बोलना, उसी टॉपिक के ऊपर बोलना इज अ क्लेवर वे, एंड दैट इज द विजडम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो हमेशा याद रखना है कि इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लॉजिक एंड इमोशन। तो जब कभी आप कोई पॉइंट कन्वे करना चाहते हो, जस्टिफाई इट विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, एंड देन ओनली यू विल एबल टू कन्विंस इन अ प्रॉपर वे। नेक्स्ट इज नथिंग बट योर कंटेंट्स। नाउ दिस इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कंटेंट सभी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। कंटेंट्स सभी सीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, 6 Cs ऑफ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, और कंटेंट्स उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा समझ लो। नाउ सी योर दिस योर लैंग्वेज is like a gun, and your bullets is your contents is like a bullet। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप अगर आप if you happen to go on the surgical strike, and आप ये वेपन तो लेके चले गए आपको, बट आपके बुलेट से भूल गए, तो कैसा फील होगा आपको? Okay, so I hope you are understanding it. So your language is like a weapon, is like a, this gun, and your
कंटेंट इज लाइक अ बुलेट, इफ यू वांट टू किल एनिमी यू नीड अ बोथ, आपको दोनों चाहिए। तो एंड कंटेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपका कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी हाईली साइंटिफिक, रैशनल, लॉजिकल होना चाहिए। इट शुड बी अपीलिंग टू द पीपल जिसके साथ आप बात कर रहे हो। सो और एक कंटेंट आएगा कहाँ से, ऐसे ही तो नहीं आएगा। Are you understanding what I'm trying? Content ऐसे ही तो नहीं आएगा। तो in order to increase your content, you need to read, you need to choose one field, कोई ना कोई फील्ड आपको चूज करना पड़ेगा एक, एंड उसमें आपको डीप में जाके काम करना पड़ेगा। यू नीड टू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रीडिंग, विच जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लीडर्स आर लीडर्स आर रीडर्स। आपको पढ़ना पड़ेगा। सो द मोर द वोरेशियस रीडर यू आर, द पावरफुल कंटेंट यू विल हैव। तो जितना आप वैरायटी ऑफ कंटेंट पढ़ोगे, इनफैक्ट मेरा जो फील्ड जैसे मैंने चूज किया था, इट वाज साइक। आई चोज psych as my field, psychology, human psychology. I chose that and I started reading into that field. पहले 2-3 साल कुछ नहीं लगा, पर धीरे धीरे जैसे मेरा डेप्थ ऑफ नॉलेज बढ़ता गया, आई आई वाज मेरा पावर कंटेंट बहुत पावरफुल बनता गया, एंड एज यू कैन सी, तो उसी कंटेंट के साथ मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। तो जितना पावरफुल कंटेंट रहेगा उतना आप लोगों को अपील कर पाओगे। एंड याद रखना है कि जस्ट इमेजिन योर सेल्फ कि यू कैन नॉट, एक चीज हमेशा याद है, यू कैन नॉट हाइड लैक ऑफ। आप देखोगे कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत अच्छा लैंग्वेज होता है उनका, बट उनके पास कंटेंट ही नहीं होता है। किसी किसी मैंने बहुत लोग देखे हैं कि जिनका लैंग्वेज का कंटेंट भी होनी चाहिए। अगर दोनों है तो यस यू आर इफेक्टिव कम्युनिकेटर, यू विल एबल टू अपील ईच एंड एवरी वन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट इज क्लैरिटी। क्लैरिटी, ऐसा बोला जाता है कि एवरी क्रिएशन gets created twice. First, it gets created in the mind of a creator and second into the reality. मतलब कोई भी चीज जो बनती है वो दो बार बनती है। फर्स्ट वो कहाँ पे बनती है, इट गेट्स क्रिएटेड इनटू द क्रिएटर्स माइंड। फॉर एग्जांपल ताजमहल, ऐसा बोलते हैं कि ताजमहल कहाँ बना, पहले पहले बना हुआ सबसे पहले वो राजा के, शाहजहाँ के दिमाग में, देन इट केम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो अगर आपको, आप दूसरों को तभी क्लैरिटी दे पाओगे जब आपको खुद को उस मैसेज की या फिर उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ज़्यादा हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर दैट यू हैव द डेप्थ ऑफ नॉलेज, और जब आप डेप्थ ऑफ नॉलेज हो तो ऑटोमेटिकली आपको क्लैरिटी आ जाएगी। एंड व्हेन यू आर गिविंग क्लैरिटी, वंस यू आर वेरी क्लियर ऑन दैट टॉपिक, देन यू कैन इजीली गिव क्लैरिटी टू अदर्स। मतलब दूसरों को आप आसान शब्दों में, एंड इसमें लैंग्वेज भी मैटर करता है, आपकी लैंग्वेज बहुत आसान होनी चाहिए सो दैट एवरीवन कैन इजीली अंडरस्टैंड। स्मूथ लैंग्वेज फ्लो होना चाहिए, यू विल एबल टू, जैसे आप अपीलिंग होना चाहिए, स्मूथ लैंग्वेज होना चाहिए आपका, ज़्यादा हेवी लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द ऑडियंस। तो क्लैरिटी फर्स्ट, आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज अगर हो तो आपको क्लैरिटी आएगा। सेकेंड, स्मूथ, आसान शब्दों में अगर आप दूसरों को एक्सप्लेन कर पाते हो तो यस, यू विल एबल टू, यू विल एबल टू गेट, you will able to give the clarity of the message whatever you are trying to convey to the audience. Now, last but not least is congruence. Now, it is said that congruence is nothing but, इसको हम ऐसे याद रख सकते हो कि I have already elaborated this concept in the personality development का series। वहाँ पे मैंने integrated personality development के ऊपर एक वीडियो बनाया था। If you haven't watched it, I highly recommend you to go over there and watch it. So congruence, there are three things. First, what you, for example, what you think, what you speak and what you do, अगर ये तीनों चीज़ें सेम हैं, देर इज अ कॉन्ग्रुएंस इन योर पर्सनैलिटी। आपके पर्सनैलिटी में क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस होता है, और इसी को हम इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी बोलते हैं। नाउ यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट सेवन, देर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि दिस इज द वर्बल, एंड सेकेंड होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दिस इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। You will be surprised to know that 30% of
communication, overall communication is verbal communication, and 70% of the communication is non-verbal communication. I hope you are understanding कि non-verbal communication कितना important होता है. मतलब जब आप स्टेज पे जाते हो या जब आप किसी के साथ बात करते हो, तो इफ़ यू आर अ कॉन्ग्रुएंट पर्सन, मतलब जैसे आप सोचते हो वही आप बोलते हो, तो योर बॉडी स्टार्ट स्पीकिंग विथ यू. आपका पूरा आपके योर गेस्चर्स, योर पोस्चर, योर फेशियल एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग स्टार्ट स्पीक्स विथ यू. मतलब आपकी पूरी बॉडी आपके साथ बोलती है, बिकॉज यू डीपली बिलीव इन वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू कन्वे. तो जब वो है, तब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना 70% कम्युनिकेशन है. तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली आपका बॉडी का एक्सप्रेशन, जैसे मेरे फेशियल एक्सप्रेशन आप देख पा रहे हो, मेरे मूवमेंट देख पा रहे हो बॉडी की, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, दिस इज स्ट्रॉन्ग, बिकॉज जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ये मैंने खुद एग्जीक्यूट किया है अपने लाइफ में. और वॉट एवर आई एम ट्राई, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ, आई फर्मली बिलीव इन दैट. दैट्स वाई देर इज अ कॉन्ग्रुएंस. मतलब मेरी सोच, मेरे शब्द और मेरी एक्शन तीनों में क्या है, कॉन्ग्रुएंस है. दैट्स वाई आई एम appealing to you. That's why I am a good communicator. So I hope you are understanding what I am trying to convey. मतलब फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये बोलना है कि मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, मैं बोलता हूँ कि सबने मेडिटेशन करना चाहिए. ओके, फाइन, मेडिटेशन सबने करना चाहिए, ऐसा मैं सबको बता रहा हूँ. बट इफ़ आई डोंट डू द मेडिटेशन इन माई पर्सनल लाइफ, तो जब मैं बोलूँगा वो उतना इफेक्टिव तरीके से नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड, डीप डाउन इन माई सेल्फ, आई नो दैट आई एम नॉट द पर्सन हु डू द मेडिटेशन. और मैं दूसरों को फुकट में सिर्फ एडवाइस देते जा रहा हूँ. आई नो, यू नो द चीपेस्ट कमोडिटी इन दिस वर्ल्ड, सबसे चीपेस्ट कमोडिटी क्या है? एडवाइस. बहुत सस्ते में मिल जाती है कहीं भी. तो इफ यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन, यू आर नॉट अ कॉन्ग्रुएंट पर्सन. बट अगर इफ आई एम अ कॉन्ग्रुएंट पर्सन, मतलब क्या होता है, अगर मैं खुद अगर मेडिटेशन करता हूँ मेरे लाइफ में, और मैं आपको भी बता रहा हूँ, तो जब मैं वो बताऊंगा, तब मेरी बॉडी खुद आपको ये रिफ्लेक्ट करेगी. माई फेशियल एक्सप्रेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल रिफ्लेक्ट, एंड 70% ऑफ कम्युनिकेशन वहाँ से आपको कन्वे हो जाएगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. And I will be very appealing to the audience. I will be very appealing to the person with whom I am interacting. सो उस तरीके का कम्युनिकेशन हमें चाहिए. तो ये कब होगा? वेन यू आर अ कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीग्रेटेड पर्सन. एंड कॉन्ग्रुएंट एंड इंटीग्रेटेड पर्सन बनने का सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका मैं बताऊंगा कि सिंपल, ऑलवेज रिमेंबर, से व्हाट यू मीन एंड मीन व्हाट यू से. अगर आप इस तरीके के इंसान हो, you are the person who walk on your talk. I want you to listen very carefully. If you are a person who walk on your talk, अगर आप जैसा बोलते हो वैसा उसके ऊपर चलते हो, इफ़ यू से वॉट यू मीन एंड मीन वॉट यू से, इफ़ यू आर अ मैन और अ वुमन ऑफ योर ओन वर्ड, कॉन्ग्रुएंस विल ऑटोमेटिकली कम इन योर पर्सनैलिटी. आपको कोई एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप ऐसे इंसान नहीं हो, आप बोलते कुछ हो, करते कुछ हो, सोचते कुछ हो, तो आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्ग्रुएंस कहीं नहीं रहेगा. तो सिंपली आपको कॉन्ग्रुएंस कैसे लाना है, याद रखना है, जो भी आप बोलो, यू हैव टू वॉक ऑन योर टॉक. यू नीड टू बी द मैन और वुमन ऑफ योर ओन वर्ड. आपके शब्द एक पत्थर की लकीर की तरह होनी चाहिए. तो आपने बोल दिया, तो उसके ऊपर आप कोशिश करोगे पूरी उसके ऊपर चलना. सो अगर आप ऐसे इंसान हो, तो नेचुरली आपके इसमें कॉन्ग्रुएंस, पर्सनैलिटी में कॉन्ग्रुएंस होगा, एंड दैट विल रिफ्लेक्ट while doing the communication. So I hope you understood it. Thank you guys, that's it for today. If you like this video, don't forget to share it, subscribe it. You can connect with me through the Instagram channel. Siddhant Life School is my Instagram channel. Thank you guys. That's it for today. Thank you for watching it. Thank you. Have a great evening ahead.